Thank you, Jesus. We bless your holy name. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Come on. इस समय वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे. Father, we pray, Lord Jesus, आज के इस शाम के समय जो भी वचन इस समय मैं बांटने वाला हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन के द्वारा प्रभु तू तेरे लोगों को छू रहा है प्रभु. And I believe that you are going to do an amazing work through this word of Father God. We thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता. Amen. 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 All right. So let's get into the word right now. ये हम इस समय वचन में जाएंगे. Okay. और the topic which I have posted, जो topic हमने इस समय जो है title रखा है. Okay. The prophetic meaning of worship and intercession. Praise the Lord. Hallelujah. It is very important for us to understand. ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है to understand the prophetic meaning of worship and intercession. हम बहुत बार देख रहे हैं इस समय हर जगह पर, हर फेसबुक पेज पर, हर चर्च में everyone is into intercession right now. सभी जन इस समय मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं, सभी जन इस समय आराधना कर रहे हैं. ओके. एंड it is very good and it is very pleasant. Okay. काफ़ी अच्छी और it is very important thing which is happening right now. Okay. But we also need to understand, हमें कुछ गहन और रहस्यमय चीजें समझना भी जरूरी है. What is the real meaning about prophetic meaning of worship and intercession? इस समय हम देखेंगे वचन से उत्पत्ति. Everyone is aware about this story. जब याकूब के जो बच्चे हैं, याकूब के जो संतान हैं, जब यूसुफ के पास मिस्र में जाते हैं, when Jacob's sons go to visit Joseph, okay, when they are facing the famine, जब वो एक अकाल के समय भूकाल वहाँ पर चल रहा होता है, and उस समय जब वो यूसुफ को मिलने जाते हैं, there is a scene that Jacob's son have reached Egypt. They met Joseph, their brother, but he still has not revealed himself to them. Okay, वो लोग यूसुफ को वहाँ पर मिलते हैं. ओके. वो लोग यूसुफ से मुलाकात करते हैं, बट यूसुफ जो है उसकी असली आइडेंटिटी, उसकी असली पहचान वो उनके सामने दिखाता नहीं है, वो दर्शाता नहीं है. Everyone know about this story. सबको ये कहानी के बारे में पता है. Okay. If you see, Joseph asked his manager, अगर मैं जल्दी कहूँगा so that we do not have much time, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. Okay. So Joseph has put it into action in another test to check whether their hearts of his brothers have really changed or not. सबको पता है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा था. ओके. एंड बेचने के बाद वो एक गुलाम के तौर पे मिस्र देश में जो है लाया गया. ओके. एंड सबको ये कहानी पता है कि आगे जाके क्या हुआ एंड व्हाट ऑल हैपेंड, एंड उसके साथ उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और वो जो इजिप्ट का प्रधानमंत्री कैसे बना. आई डोंट हैव टू टेल यू ऑल दिस थिंग्स, यू नो इट ऑल, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वन पॉइंट. हम एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं जहाँ पे where we see that the brothers have come to meet Joseph. Okay. And when they come to meet Joseph doesn't reveal his identity. उसकी पहचान को वो प्रकट नहीं करता, क्योंकि यूसुफ को कुछ चीजें जो है वहां पर उनको परख नहीं होती है उसके भाइयों के चरित्र में. Praise the Lord. Joseph wanted to test few things in the character of his brothers. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Joseph asked his manager to plant his silver cup in the sack of Benjamin. Okay. यूसुफ जो है उसके चांदी के प्याले को जो है वो उसके मैनेजर को कहता है कि बिन्यामीन के जो थैला है उसमें छिपा के रख. Praise the Lord. Hallelujah. He strategically asked his people to give that silver cup, to keep that silver cup in the sack of Benjamin. Praise the Lord. While in checking process, the silver cup is found in the possession of Benjamin. जब उसकी जांच पड़ताल चलती रहती है, जब वो लोग ढूंढते हैं कि उस यूसुफ का चांदी का प्याला कहाँ पर है, तब पता चलता है कि वो बिन्यामीन के पास है, बेंजामिन के पास है. Then the brothers returned back to Egypt. Again, all the brothers are silent. Okay? जब वो भाई लोग फिर से मिस्र देश में आते हैं, तो सारे जितने भी भाई वहां पर है यूसुफ के, वो सारे चुप रहते हैं.
वो सारे शांत रहते हैं क्योंकि वो एक डर में है वो कि अभी उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या बर्ताव होगा। Praise Lord. Again, they were too shocked and they were silent. वो लोग आश्चर्यचकित थे और वो लोग शांत थे। Okay. However, Judah takes it upon himself to intercede on behalf of Benjamin. Praise the Lord. Hallelujah. लेकिन यहूदा जो है वहां पर उस समय जो बेन्यामीन के थैले में वो जो सिल्वर का जो कप है वो उसे मिला था, उसको छुपाने के लिए वो जो दंड है वो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ये सारी चीजों को देखते हैं उत्पत्ति इसका 44वां अध्याय 32 और 33 वचन में देखते हैं हम। जेनेसिस चैप्टर 44 वर्स 32 एंड 33। ओके, द पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। मैं फिर से एक बार आपको एंकरेज करना चाहता हूं, अगर आप इस लिंक को देख रहे हो कृपया करके आपके दोस्तों के साथ फेसबुक मैसेंजर पे टाइमलाइंस पे इस लिंक को शेयर करें। ओके, जब हम अंतिम में प्रार्थना करेंगे, आई बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग पावरफुल थ्रू दिस सेशन। ओके, सो गेट रेडी। ओके, तैयार हो जाए इस समय। सो एज आई सेड, okay, Genesis chapter 44 verse 32 and 33, Judah pleaded with Joseph saying, for your servant became surety for the lad that is Benjamin, okay, to my father, saying, if I do not bring him back to you, then I shall bear the blame before my father forever. Verse 33, now therefore please let your servant remain instead of the lad as a slave to my lord, and let the lad go with his brother. Praise the Lord. गौर करें इस चीज पर। जो भाई लोग पहले इतने उनके अंदर लालच भरी थी, इतने उनके कैरेक्टर में, उनके चरित्र में, जब यूसुफ को बेचा गया था, जब यूसुफ को उन्होंने उसके ऊपर जो है अत्याचार किया था, उस समय उनका चरित्र अलग था। लेकिन यहाँ पर यूसुफ जो है अपनी पहचान दिखाता नहीं कि वो उनका भाई है। क्यों? क्योंकि यूसुफ को कुछ चीजें वहां पर परखनी थी, और उसी परखने की प्रक्रिया में यहूदा जो है वो इस समय उसका सच्चा चरित्र यहां पर बाहर आता है, और वो कहता है कि मैं बिन्यामीन हे मेरे प्रभु, तुम बिन्यामीन को छोड़ दो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैंने ली थी जब मैं यहां पर आया था, और अभी इस समय मैं दास बनकर, मैं आपका गुलाम बनकर ठहरने के लिए यहां पर तैयार हूं, लेकिन मेरे छोटे भाई को जाने दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहूदा यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। यहूदा यहां पर बेंजामिन के बिहाफ में खड़ा था। यहूदा यहां पर बेंजामिन के लिए मध्यस्थी कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द कैरेक्टर ऑफ जूडा स्पीक्स अबाउट इंटरसेशन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब यूसुफ ने ये देखा कि ये भाई लोग जब एक समय पर मुझे बेचने के सोच के हिसाब से रहते थे, या एक दूसरे के बारे में कभी सोचते नहीं थे, एक दूसरे के बारे में कभी परवाह नहीं करते थे, या एक दूसरे के दिल में प्रति प्यार नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आज जब मैं इनको मेरे सामने देख रहा हूं, इनमें कुछ तो मुझे बदलाव दिख रहा है। यहूदा जो है वो अपने छोटे भाई के लिए अपने जान को दांव पर लगाने की कोशिश कर रहा है। Praise the Lord. When Judah interceded, Joseph revealed his identity. Praise the Lord. Hallelujah. जब यहूदा ने बेंजामिन के लिए मध्यस्थी की, उस समय यूसुफ ने अपनी पहचान को उसके सामने प्रकट किया। Praise the Lord. Hallelujah. My dear friends, this is something very important which I'm trying to explain you. ये काफी महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम इस ही फाउंडेशन पेज के नाम से जो है हम इस समय लाइव कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि इस पेज का जो थीम है वर्शिप, वर्ड एंड इंटरसेशन। ओके, मध्यस्थी की प्रार्थना, वचन और आराधना। Okay, so Joseph sees that earlier his brothers, as I said, Judah was ready to take the place of Benjamin in prison. Joseph sees this change in his brothers and reveal himself. हम देखते हैं उत्पत्ति इसका 45वां अध्याय और 1 से 3 वचन में, अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़ सकते हैं। 45 चैप्टर वर्स 1 and 3. I believe this is very prophetic. मैं विश्वास करता हूँ आजकल के समय में, जहां पर हर एक व्यक्ति अपने खुद के परिवार के बारे में सोचता है, हर एक व्यक्ति अपने खुद के सेवकाई के बारे में सोचता है, हर एक व्यक्ति अपने खुद के चर्च के बारे में सोचता है, हर एक व्यक्ति जहां पर हर अपना मराठी में एक
एक बोलते कहावत है, ओके, द पीपल ऑफ मराठी दे वुड रियली बी एबल टू रिलेट टू दिस, आपलं ते बाबू आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट. ओके, प्रेज द लॉर्ड. इसका मतलब ये है कि जो अपना है वो अच्छा है, जो दूसरे का है उससे मुझे बहुत चिढ़ आती है. But in this time of crisis, in this time of famine, when you and I intercede for people, जब आप और मैं लोगों के लिए मध्यस्थी करेंगे, जब आप और मैं एक मसीह के शरीर के तौर पे इकट्ठा होकर उस खुदा के पास मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे, Christ will reveal His glory to you. Praise the Lord. Hallelujah. जैसे यूसुफ ने वो यहूदा की मध्यस्थी के रवैये को देखकर उसकी आइडेंटिटी को प्रकट किया, वैसे जब हम और आप मध्यस्थी करेंगे तब मसीह यीशु जो है वो अपनी महिमा को आपकी जिंदगी के ऊपर प्रकट करेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस रेवलेशन. हालेलुया. It is very important for us to understand and learn this revelation. ये काफी महत्वपूर्ण है इस चीज को देखने की, इस प्रक्रिया को समझने. It's all about I, me, myself. It's only when we enter into sacrificial intercession. मध्यस्थी करना और बलिदानी मध्यस्थी करना में फर्क है. बलिदानी मध्यस्थी करना मतलब अपना छोड़कर दूसरों के लिए मध्यस्थी करना. अपने परिवार के लिए ही सिर्फ मध्यस्थी नहीं, लेकिन जिसको आप ठीक तरीके से जानते भी नहीं है, जिस पड़ोसी के लिए, या फिर जो व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, जो व्यक्ति ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, या जिस व्यक्ति ने आपको एक समय पर गुस्सा दिलाया, जिस व्यक्ति से आपको चिढ़ आती है, उस व्यक्ति के लिए जब आप मध्यस्थी करते हैं, आई बिलीव दैट यू विल सी अनयूजुअल ग्लोरी ऑफ गॉड ऑन योर लाइफ. Praise the Lord. आप बोलोगे कि ब्रदर आप बोलने के लिए काफी इजी है, बोलने के लिए काफी आसान है. इट इज इजी टू से कि तुम अपने दुश्मनों के लिए, लेकिन मैं मेरे शब्द नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह के शब्द कह रहा हूं. Praise the Lord. हालेलुया. अगर मुझसे कंप्लेन है तो, अगर इस शब्दों से कंप्लेन है तो जाकर यीशु मसीह से बात करो. Praise the Lord. हालेलुया. We will go forward. हम यहूदा के बारे में देख रहे हैं इस समय कि यहूदा का चरित्र था मध्यस्थी करना. ओके, अगर हम यहूदा के नाम के बारे में, उस मीनिंग के बारे में देखें, हम कुछ वचनों को देखेंगे इस समय. भजन संहिता इसका 76वां अध्याय और पहला वचन, साम्स चैप्टर 76 वर्स 1. ओके, हम देखेंगे इस समय साम्स चैप्टर 76 वर्स 1. जिसके पास भी बाइबल है, मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को भी खोलें. साम्स 76. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Judah, God is known. His name is great in Israel. Praise the Lord. Hallelujah. यहूदा में परमेश्वर जो है जाना जाता है. In Judah, God is known and His name is great in Israel. Praise the Lord. Hallelujah. हम आगे देखेंगे. Yehuda was the fourth son of Jacob, one of whose descendant was to be Messiah. यहूदा जो है वो याकूब का चौथा बेटा था. Praise the Lord. Hallelujah. आपको पता है यहूदा का मतलब क्या है? यहूदा का मतलब है स्तुति. Praise the Lord. Hallelujah. यहूदा का मतलब है स्तुति. If you see, उसके अगर हम वंश को देखेंगे तो उत्पत्ति के 29वें अध्याय में अगर हम देखते हैं, 29वें अध्याय 35 से 49 और 8 से 12 में देखेंगे, आप पढ़ सकते हैं. यहूदा, इंटरेस्टिंगली द मीनिंग ऑफ जूडा मींस प्रेज. ओके, गॉड इज ऑनर्ड इन जूडा, मतलब परमेश्वर को आदर मिलता है यहूदा में, मतलब परमेश्वर को आदर मिलता है स्तुति में. प्रेज द लॉर्ड. Now I'm taking to another topic. मैं आपको एक अलग दूसरे पार्ट 2 में लेकर जा रहा हूँ. पहले हमने देखा यहूदा के अंदर चरित्र था मध्यस्थी करना. दूसरा हम देखते यहूदा के नाम में ही अर्थ है स्तुति देना, यानी वर्शिप करना. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. God is honored when we praise Him. परमेश्वर को आदर मिलता है जब हम उसे स्तुति देते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. When हम देखते हैं इस समय, ओके, हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 29 वर्स 35. अगर मिल रहा है तो प्लीज पढ़े. उत्पत्ति इसका 29वां अध्याय और 35वां वचन. ओके,
हम देखेंगे when Leah named her fourth son Judah, do you know why? जब लिया को जो है जब वो जो है उसका चौथा बेटा हुआ तब उसने उसको यहूदा नाम क्यों रखा पता है? At this point between she decided to surrender and not to lament because Jacob's lack of love, क्योंकि यहूदा उससे कम प्यार करता, क्योंकि याकूब उससे कम प्यार करता था। Praise Lord, हालेलुया। जूडा जो है, यहूदा जो है वो लिया और याकूब की संतान है। Praise the Lord. And हम 29वें वचन में 35वें वचन में देखते हैं, उत्पत्ति इसका 29वां अध्याय और 35वें वचन में देखते हैं, इंग्लिश में लिखा है This time I will praise the Lord. हालेलुया। तब लिया ने कहा इस समय मैं परमेश्वर को स्तुति दूंगी। Praise the Lord. This was when Judah was born. उसी समय यहूदा का जन्म हुआ। Just as Judah held a special place in God's heart, जैसे यहूदा की एक विशेष जगह थी परमेश्वर के दिल में। Okay, you know, praise also holds a special place in today, God's heart. जैसे यहूदा के नाम का अर्थ है स्तुति देना, उसी प्रकार परमेश्वर जो है आज आपके और मेरी स्तुति को भी एक प्रथम स्थान देता है। Praise the Lord. जैसे परमेश्वर हमेशा, जैसे उत्पत्ति के भजन संहिता के पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर यहूदा में प्रसन्न होता है, वैसे परमेश्वर आपके और स्तुति में, आपके और मेरे स्तुति में और आराधना में प्रसन्न होता है। Praise the Lord. हालेलुया। हम देखते हैं काफी सारे एग्जाम्पल्स, अगर मैं आपको कहूंगा न्यायों की पुस्तक जजेस चैप्टर 1 verse 1 and 2 अगर हम देखते हैं, now after the death of Joshua it came to pass that children of Israel asked the Lord saying, who shall be first to go up? जब यहोशुआ के मृत्यु के बाद जब इजरायली लोगों ने जो है और परमेश्वर ने कहा कि यहूदा, पढ़े हम हिंदी में पढ़ेंगे। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। यहोवा ने क्या उत्तर दिया? यहूदा चढ़ाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के नजर में यहूदा काफी विशेष स्थान रखता था और यहूदा के नाम में ही अर्थ है स्तुति। इसका मतलब आज भी परमेश्वर के नजर में आपकी स्तुति और आराधना एक विशेष स्थान रखती है परमेश्वर के दिल में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। It is very important for us to understand this revelation. You know, when we see in the same thing in Judges chapter 20 verse 18, न्यायों की पुस्तक इसका 20वां अध्याय उसी पुस्तक में और 18वां वचन देखेंगे, when it was a battle, when we see the same things in Judges, when it was the battle, Judah went up first. हम देखेंगे 20वां अध्याय और 18वां वचन, न्यायों की पुस्तक 20वां अध्याय 18वां वचन। सब इजराइली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली, और इजराइलियों ने पूछा कि हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा यहूदा पहले चढ़ाई करे। यहाँ पर भी हम देखते हैं यहोवा ने कहा कि यहूदा ही पहले चढ़ाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने यहूदा के चरित्र को आपको बताया कि यहूदा का चरित्र एक मध्यस्थी करने वाला था, और अब मैं कह रहा हूं कि यहूदा के नाम में अर्थ क्या है और यहूदा की जगह परमेश्वर के दिल में क्या है। कुछ भी वहां पर लड़ाई होती हो या फिर वहां पर हम पहले अध्याय में देखते हैं लड़ने के लिए कौन पहले जाएगा, तो यहोवा हमेशा कहते थे कि यहूदा पहले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। This is the prophetic picture of how we are into battle. जब हम यही एक भविष्यवाणी का चित्र है, जब भी हम किसी युद्ध में होते, जब भी हम किसी मुश्किल घड़ी में होते, जब भी हम किसी मुश्किल हालात में होते, जैसे हम देखते कि पूरी दुनिया एक युद्ध में है, एक लड़ाई में है, एक मुश्किल हालात में है, लेकिन इस समय परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि पहले यहूदा ऊपर जाए, यानी पहले परमेश्वर के लिए स्तुति ऊपर जाए, आराधना ऊपर जाए। Praise the Lord, Hallelujah. I want to prophetically tell you that you are not to enter the battle alone. We must allow Judah to go up first. मैं आपको भविष्यवाणी के तौर पे बताना चाहता हूँ कि हमें युद्ध में अकेले पहले आगे नहीं जाना है, लेकिन हमें स्तुति और आराधना के साथ आगे जाना है। Praise the Lord, Hallelujah. It is very important for us to understand. ये हमें समझना काफी जरूरी है। So
जैसे हमने कहा कि मध्यस्थी की प्रार्थना करना और आराधना करना, इट गोज हैंड इन हैंड। ये एक ही व्यक्ति के अंदर ये दो चरित्र थे। प्रेज द लॉर्ड। Today, if you are worshiping in the Lord in your battle, let me tell you, God is pleased by you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। अपने आप को दोष मत दो। अगर आप मुश्किल हालात में हो, पहले स्तुति और आराधना को ऊपर जाने दो। बहुत बार हम देखते हैं किसी युद्ध भूमि में, बाइबल में हम काफी सारे एग्जाम्पल देखते हैं। युद्ध चल रहा है और वहां पर जो है भविष्यवक्ता जो है वो आदेश देते हैं कि सबसे पहले जो है आराधक युद्ध भूमि के आगे आए। Praise the Lord, Hallelujah. Let the worshippers go first. अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार है, जिसके पास सबसे ज्यादा तेज तरार तलवार है, वो युद्ध भूमि में आगे होने चाहिए। But here we see the worshippers were ahead first. Praise the Lord, Hallelujah. It is very important for us to understand this thing, that we need to keep our praises and worship first. We need to be with the attitude of intercession. Praise the Lord, Hallelujah. मध्यस्थी और आराधना ये दोनों एक साथ होना जरूरी है। Praise the Lord. और जब मध्यस्थी, आराधना और प्रार्थना, मैं कल ही एक चर्च में लाइव सेशन कर रहा था, and I shared this revelation कि परमेश्वर ने जो है उपदेशक की पुस्तक में, इक्लेसियास्टिक्स की पुस्तक में लिखा है, ओके, 3 पदरी जो डोरी होती है, 3-fold cords, उसे ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट होता है। It is very difficult to break the 3-fold cords, right? और ये वचन हम बार बार जो है शादी के समय लेते हैं या एंगेजमेंट के समय लेते हैं। But let me tell you, this 3-fold cord of worship, prayer and intercession, it is very difficult for devil to break it. In fact, through this 3-fold cord, devil will be broken, your sickness will be broken, your problems will be broken, and you will come out of bondages like never before in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. If you are suffering from that sickness, अगर आप उस बीमारी से पीड़ित हो, अगर आप उस किसी चिंता से पीड़ित हो, अगर आप किसी डिप्रेशन से पीड़ित हो, सुसाइडल थॉट्स से पीड़ित हो, ओके, कुछ आपको मतलब ऐसे कुछ विचार आ रहे हैं जो I sense some people who are suffering from a suicidal thoughts. मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को जो suicidal thoughts पे हैं, okay, I break every suicidal thoughts now in the name of Jesus. Hallelujah. It is very important for us to understand. Okay, I am stopping. मैं इस समय रुक रहा हूँ, but I want to pray for you right now. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. We want to have a song of worship, and जैसे हम गीत गाएंगे, जैसे हम आराधना करेंगे, I want you to be with that atmosphere of worship right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Let's close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें इस समय. Come on, जिसे अन्य भाषा आती है, अन्य भाषा में बात करें इस समय. The people who can speak in tongues, please, I request you to speak in tongues right now. There is something great going to happen right now. एक अपेक्षा के साथ बैठे. Okay, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात encourage करना चाहता हूँ. हम बहुत बार प्रेयर मीटिंग्स में गए, चर्चेस में हम जाते हैं एवरी संडे. भले चर्च बिल्डिंग्स आज बंद है, प्रेयर मीटिंग्स नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वही है. परमेश्वर का आत्मा, because Jesus, the word of the Lord says, He is the same yesterday, today and forever. वो कल, आज और युगानुग एक जैसा है. इसका मतलब ये है, जो आत्मा प्रेयर मीटिंग्स में कार्य करता है, जो आत्मा चर्चेस में कार्य करता है, जो आत्मा बड़े बड़े क्रूसेड्स में कार्य करता है, वही पवित्र आत्मा इस समय आपके घरों में कार्य करने वाला है. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Re alaba kuru mohondere ni masekeri alamandere. Thank you, Jesus. We worship you, Father. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we welcome you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, let's open your mouth right now. मुंह को खोले इस समय. मुंह
open your mouth and just give that praises to Jesus right now. जो स्तुति के योग्य है उसे स्तुति दे इस समय, जिस आराधना के वो योग्य है इस समय उसे आराधना दे इस समय। Hallelujah. Thank you, Jesus. Your intercession will reveal God's glory. Your worship will enable you to stand strong in your battle. Your worship will bring you more close to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे प्यार करूं हरदम। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे चाह करूं हर पल। शाम और सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरूं ही तो, चरवाह है तो क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकू हमेशा तुझे को मैं, तेरे वचन में बढ़ूंगा मैं, जिंदगी भर मैं तेरी छाया मैं कहूं, तेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ। Thank you, Jesus. My all sources of blessings are from you, O Lord Jesus. मेरे सारे आशीषों के सोते तेरी तरफ से आते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ora la baba basse kalamandere debe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Right now, Father, we pray. हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। Thank you, Holy Spirit. Every person who is watching right now, हर व्यक्ति जो इस समय हमें देख रहा है प्रभु, मेरा विश्वास है कि तू इस समय उनको छू रहा है प्रभु। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. There is someone suffering from spondylitis right now. इस समय कोई व्यक्ति है जो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से पीड़ित है इस समय। If you are that person, मैं चाहता हूँ कि आप इस कमेंट सेक्शन में टाइप करें इस समय। God wants to bless, God wants to heal you right now. परमेश्वर आपको इस समय चंगा करना चाहता है। Thank you, Jesus. There is someone, I repeat, कोई व्यक्ति है जो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से पीड़ित है इस समय। God wants to touch you now in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Oh, Rakaba Sehele Mahandoro. I repeat, second person. Thank you, Jesus. आपको बार बार Thank you, Holy Spirit. Every now and then you get a suicidal thoughts.
There is someone who is watching me right now. आपके घर में या आपका कोई दोस्त है या आप खुद जो है, there is someone who is suffering from a suicidal thoughts. आत्महत्या के विचार बार बार आते हैं. I break that evil thoughts now in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. अगर आप मुझे इस समय देख रहे हो और अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में टाइप करें इस समय, so that we will pray for you right now. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Ribola mahatoko seherene mahandara namaste. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Oh, we bless your name. 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 Hallelujah. We bless your name, oh Jesus. There is someone जिसकी डॉटर इन लॉ बीमार है. कोई है यहाँ पर जो जिसकी बहू बीमार है इस समय. Thank you Holy Spirit. There is someone whose daughter-in-law is suffering from sickness. Thank you Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Your name starts from N. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. There is someone who is जिसके बहू बीमार है इस समय. I pray that daughter-in-law to be healed now in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name. We bless your name. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. There is someone suffering from insomnia. कोई व्यक्ति है जो insomnia से पीड़ित है. Thank you Jesus. I see one named Vinita Gaikwad watching. Vinita Gaikwad, I want to ask you, is there someone suffering from insomnia in your family? आपकी फैमिली में कोई insomnia से पीड़ित है इस समय? Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. I want to pray, let that spirit of insomnia to leave in the name of Jesus. Insomnia का मतलब रात के समय आपको नींद नहीं आती और अलग अलग विचार आपके जहन में आते हैं. I break that power now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. We bless your name. We bless your holy name. We bless your holy name. Oh, come on, let's worship right now. इस समय आराधना करें इस समय. Come on, let's worship him right now. Hallelujah. Hallelujah. I see. मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ जो आपके जिंदगी में जो भी हालात चल रहे हैं, जिसके वजह से आप परमेश्वर को दोष दे रहे हो. यहाँ तक कि आप जो पैंडेमिक चल रहा है उसके लिए भी आप परमेश्वर को दोष दे रहे हो. But let me tell you, this pandemic, this virus or whatever is happening, it is not from God. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है. I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ. Just wait and watch. सिर्फ इंतजार करो और देखो कि परमेश्वर की काफी भारी मात्रा में महिमा को आप आपकी जिंदगी में देखोगे. You shall see the amazing hand of God upon your life. Thank you Jesus. No father would want, कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसके बेटे और बेटियां, उसके बच्चे किसी ऐसे मुसीबत से गुजरे. I want to encourage that person whomsoever is watching right now, जो परमेश्वर को दोष दे रहा है इस समय, जो भी आपके व्यक्तिगत जिंदगी में हालात चल रहे हैं. Let me tell you, God is waiting. परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है. परमेश्वर आपसे प्यार करता है. God loves you. Hallelujah. Thank you Jesus. There is someone who is suffering from the spirit of unforgiveness. मैं देख रहा हूँ किसी व्यक्ति को जो अक्षमा की आत्मा से जूझ रहा है. You are not, able to forgive some people in your life. आप कुछ लोगों को जो है क्षमा नहीं कर पा रहे हो आपकी जिंदगी में. But I want to encourage you. I want to encourage you. Just release those people. उन लोगों को इस समय रिलीज करें. And let me tell you, you shall feel that peace. आप उस शांति को महसूस करोगे. एक ऐसी शांति जो कोई एंटरटेनमेंट या कोई व्यक्ति आपको दे नहीं सकता. Just release that burden from you right now. जब भी
एक फ्लाइट को टेक ऑफ करना होता है, कोई भी एरोप्लेन को जब टेक ऑफ करना होता है तो सबसे पहले एक्सेस बैगेज उसमें से निकालते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान उसके अंदर है उसमें से निकालते हैं। आप में से काफी सारे लोग काफी एक्स्ट्रा सामान आपके दिमाग में और आपकी जिंदगी में लेकर चल रहे हो। जस्ट रिमूव दैट थॉट्स फ्रॉम योर माइंड, जस्ट रिलीज दोस पीपल फ्रॉम योर हार्ट, द पीपल whom you are not able to forgive, and you shall see an amazing testimony in your life। आप अद्भुत गवाही को आपके जिंदगी में देखोगे। Hallelujah। Oh, we bless your name, we bless your holy name, we bless your holy name। Thank you, Jesus। Thank you, Jesus। I have last 10 minutes, मेरे पास आखिरी 10 मिनट है, बट मेरा विश्वास है इन 10 मिनटों में परमेश्वर कुछ तो अद्भुत करने वाला है। Come on, speak in tongues right now। आप में से कुछ लोगों को आपके शरीर में कुछ अलग महसूस हो रहा है इस समय। आप में से as I pray for the deliverance right now, जैसे मैं छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा, the demons are going to leave from your body right now। आपके शरीर से दुष्ट आत्माएं निकलने वाले। If anyone is possessed by demon right now, I speak deliverance upon you now in the name of Jesus। I command every demon or every demonic power to leave in Jesus' name। Hallelujah, hallelujah। Come on, receive it। विश्वास से स्वीकारे इस समय। Hallelujah। Thank you, Jesus। Every thought of pornography, I see some people are suffering from pornography। अश्लील वीडियोस को देखने की आदत में कोई है जो फंस गया है। I break that power over you now in the name of Jesus। Hallelujah। Come on। Today is your time। ये आज आपका दिन है to come out of that bad habit right now। उस गंदी आदत से बाहर आने का ये आज आपका समय। अपने आप को दोष मत दिखाए इस समय। Thank you, Jesus। Every pornographic spirit, I command you, leave in the name of Jesus। Hallelujah। Let me tell you, I want to be honest in front of you। Okay? अपने आप को दोष मत लगाए अगर आप किसी गलत चीज में फंसे हुए इस समय। एक समय में मैं खुद भी गलत चीजों में फंसा था, बट परमेश्वर ने मुझे उस गंदगी से बाहर निकाल कर, देखो मैं आज आपके सामने उन्हीं चीजों को धमका रहा हूं यीशु के नाम से। You can do it। I want you to just use your authority। मैं चाहता हूं कि आप उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को यूज करें, क्योंकि आपके जुबान में वो सामर्थ्य, क्योंकि हमारे पिता ने कहा था let there be light and there was light। हमारे पिता ने कहा कि वहां पर प्रकाश हो और वहां पर प्रकाश निर्माण हुआ। वो अथॉरिटी, वो जीवन और मृत्यु का सामर्थ आपके और मेरी जुबान में है इस समय। I want you to declare that I want you to rebuke that sickness in your body now in the name of Jesus। I want you to rebuke that evil spirit out of your body now in the name of Jesus। Hallelujah। Thank you, Jesus। Hallelujah। पाक खुदावन जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूए पाक खुदावन तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। Come on।
is washing your heart and your spirit right now with His blood of Jesus. मैं देख रहा हूँ आप में से कुछ लोगों की बुरी आदतें इस समय छूट रही है यीशु के नाम से. If you're crying right now, अगर आप रो रहे हो, आंसू आ रहे हैं, तो आंसू आने दो इस समय. God is delivering you right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु. I believe and I thank you for changing people's life right now. मैं विश्वास करता हूँ और तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने लोगों की जिंदगियों का नियंत्रण लिया है इस समय. I see some of you are crying right now. मैं देख रहा हूँ आप में से कुछ लोग आंसुओं में हैं इस समय. I see some of you feel कि मैं उस फिर से वो गंदी आदत में नहीं जाऊंगा. Hallelujah. I see some of you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. I see some of you who are not talking to your parents. मैं देख रहा हूँ आप में से कुछ लोग अपने माता पिता से बात नहीं करते. I want you to give them. I want you to show your love to your parents. मैं चाहता हूँ कि आपके प्यार को अपने माता पिता से जताए इस समय. I see काफी सारे परिवारों में जो है बच्चे और माता पिता बात नहीं कर रहे. I break that devil's strategy of divide and I bring unity back into your family now in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Receive this. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास पहले से ही नौकरी नहीं थी और अब ये लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था ये हो रही है वो हो रही है, मेरे पास मैं कैसे नौकरी कर पाऊंगा. I want to encourage some people who are watching, जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना करें, they are suffering from financial losses. Your job is waiting after this lockdown. आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है इस लॉकडाउन के बाद. भले लोग हो सकता है कि नौकरियां गवा रहे हैं, but I prophesy that your job is waiting for you after this lockdown. Thank you, Jesus. Hallelujah. Some of you shall receive your appointment letter in the month of July end. जुलाई के एंड में आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा. Thank you, Jesus. Receive this. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So koraba hataralamasse, rele mahandaralamasse. Come on. Thank you, Jesus. We pray. हम प्रार्थना करते हैं for the person who has taken this initiative. He Foundation के लिए हम प्रार्थना करते हैं for this amazing initiative. And we pray, Father, कि जो कोई प्रभु इस समय लाइव देख रहा है, I believe that you, everyone is going to come with a testimony. सभी लोग एक गवाही के साथ आ रहे हैं यीशु के नाम से. Hallelujah. We bless your holy name. We bless your holy name. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. In Jesus' mighty and matchless name we pray. Amen, amen, amen. Thank you so much. God bless you. And once again, I want to thank He Foundation and for this wonderful opportunity which I have been provided with for sharing this word. And I believe आज के इस शाम के समय, इस रात के समय परमेश्वर ने आपसे बात किया है. Okay, just know this that आपकी मध्यस्थी परमेश्वर के सच्चे महिमा को आपकी जिंदगी में प्रकट करेगी और आपकी आराधना आपके जिंदगी के हर लड़ाई से आपको जीतने में आपको आगे रखेगी. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Shalom.